Let's start today with Gujarat Board English textbook, chapter 3rd, that is on friendship and duty. The name of the chapter actually is After 20 Years, and very interesting story. You need to learn, go through at least question answers if you don't have this particular chapter. I would not insist on learning the question answers, but go through this video, and there's a grammar section that is being provided that is based on this chapter. So for grammar section, of course, you'll have to go through it, and explanation is given at the end of this chapter related to various grammar questions over here. So let's start. After 20 years. Now here just a small introduction is being given to you. That is William Sidney Porter, right? William Sidney Porter, known better by the pen name O. Henry. तो ज़्यादातर I would say that he is known by the pen name O. Henry, and he was an American writer. At the same time, you must have, yes, of course, read many stories about him. Short stories. O. Henry short stories are known for their wit, that is cleverness, intelligency, word play, that is various words that are used by him, warm characterization, clear twist ending, that is you never know what's going to happen in the end. It's like full of suspense and all. यहाँ एक twist आ जाता है end में. You think that you frame the story as you are moving ahead. तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा, but all of a sudden at the end you find कि end तो कुछ और ही है. That is called the clear twist ending. Now this author, he was born on 11 September 1862 in North Carolina, died on 5th June 1910. From December 1903 to Jan 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine, published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are The Last Leaf, very interesting, but that's for you in your 9th standard. NCERT की बुक में बहुत अच्छी स्टोरी है. The Gift of Maggie, Furnished Room, Cabbages and Kings. All are equally interesting. Yes, but this Last Leaf, you'll be doing it next year. The story After 20 Years has a typical O. Henry twist. Typical O. Henry मतलब O. Henry की ये style है. When he writes the story, there is a twist at the end. However, the characters that are shown over here could well make us reflect on our values. तो कहीं ना कहीं ये हमारी normal life के साथ ये story जुड़ी हुई है. It relates to our values, that is honesty and discipline, mannerisms, lot many good qualities that are being portrayed over here, and some other qualities in a opposite way, that is some negativity वाले qualities दिखाए गए हैं एक particular character में. So I'm not going to tell the whole story in a nutshell over here. Let's read it word to word and you are going to enjoy it. So let's start. But before that, you can answer this question on your own. Like, who is your best friend? That of course you would say Miss A कहेगी कि मुझे Miss B मेरी best friend है. Mr. A कहेगा कि मेरा best friend Mr. B है. तो you just you need to write it down. It's just a part of your this exercise, that who is your best friend. Ask yourself and you will get the answer within a second. Now why do you like him or her? तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग आंसर्स होंगे तुम्हारे दिमाग में, अलग अलग बच्चों के अलग आंसर्स. लाइक if you would ask me, I would say that I like my best friend because though we don't meet often, we meet in maybe 4-5 years. We just give a call to each other maybe once or twice in a year. But I always remember my best friend. Of course, रोज तो याद आएंगे ही. But we communicate, we talk to each other when we are in difficulty, or when we are too happy, when something good has happened in our life, or something, sometime say that I need some support, support by, say, emotional support. तो सबसे पहले that my friend comes to my mind, I just give her a call and there I hear her very soothing words, words that gives me strength and all. So I like my friend for that. And what do you mean by friendship? Yes, यहाँ पे तो मैं अपने ही जवाब दे रही हूँ.
तुम अपने लिख सकते हो, या कभी वॉइस मैसेज में मुझे ये आंसर दे सकते हो इंडिविजुअली. यू ईच कैन सेंड अ वॉइस मैसेज टू मी. यस, so don't put it down in your notebook, just send a voice message on these 3 questions, answer it in your own way. And what do you mean by friendship? देखो, मैंने तो अपने जवाब बता दिए, राइट? तुम्हें भी मुझे कहना ही होगा. Now what do you mean by friendship? For me, friendship is enjoying together. Friendship is to be honest, to be loyal to each other, to respect each other. We can also say friendship means to support in the time of difficulty. Yeah, standing with a friend at the time of crisis. So for me, friendship is lot many things. Friendship is not only enjoying, but friendship is always standing with that best friend any moment of the life when the friend calls you for support, or when we call our friend for support. Support doesn't mean money support. Support means mental support, emotional support when you are in difficulty. Some very loving words will bring you out of that sadness, right? So for me, friendship is that, right? So I'll be waiting for your voice message, each one of you. Let's start the story, and the meanings will be always provided to you over here. Now, after 20 years, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. Avenue मतलब street of a particular town or city. तो एक पुलिसमैन जा रहा था on the beat, अपनी हाथ में स्टिक लेके, मस्त एकदम इम्प्रेसिव, बहुत ही स्टाइल एंड ऑल, बिकॉज नेचुरली दैट पुलिसमैन हैज़ इज ओन दैट पोस्ट, जहाँ पे एक उनकी एक वॉक अलग होती है, द वे दे मूव द वे दे सी द थिंग्स अराउंड, तो एक अलग उनकी पहचान है. एंड द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल. अब वो जो जिस स्टाइल में ये पुलिसमैन चल रहे थे, तो वो दिखावा नहीं कर रहे थे, इट वॉज जस्ट हैबिचुअल, ये उनकी हैबिट थी. एंड स्पेक्टेटर्स बहुत कम थे, तो किसी को दिखाने के लिए तो ये कुछ कर नहीं रहे थे. इट वॉज द वे दैट यूज टू वॉक ऑन द रोड व्हेन यूज टू मूव आउट ऑन द स्ट्रीट. And the time was barely मतलब hardly 10 o'clock at night. The chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the street. अब बजे थे रात को सिर्फ 10, लेकिन ठंड इतनी थी और हल्की सी बारिश उसमें, बारिश का एक टच था उसमें, तो रास्ते पे कम लोग थे. de-peopled the street मतलब बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे रास्ते पे, राइट? ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट मतलब हर एक दरवाज़ा जो बंद था, जैसे क्योंकि वो स्ट्रीट ऐसी थी, वी कैन से ऑफिस एरिया, वर्क प्लेस थे वहाँ पे, तो रात को तो नेचुरली सारे उस शॉप्स के दरवाजे बंद हो जाते, ऑफिस बंद हो जाती थी. तो ही वॉज ऑन हिज वॉक. रात के जो वॉक पे पुलिसमैन निकलते हैं कि that is how he was moving along, and he was trying the doors, that is he was checking the doors whether there was anyone inside or not, या सब कुछ बंद है ठीक से. twirling his club मतलब अब छड़ी तो है नहीं मेरे पास, but how we move this, the stick in his hand, so that is twirling his club मतलब जो मोटी एक स्टिक रहती है हाथ में, डंडा, with many intricate and artful movement, अलग अलग तरीके से यहाँ वहाँ घुमाते हुए he was moving ahead. लेकिन नज़र उसकी शार्प थी, हर एक दरवाजे पे नज़र थी, हर एक शॉप पे नज़र जा रही थी. and then to cast his watchful eye adown, right? You can see the meaning over here. Adown means below. The Pacific thoroughfare, there is a peaceful road, public road. तो हाथ में छड़ी भी घुमा रहे थे, नज़र भी हर एक दरवाजे पे थी, नज़र रास्ते पे भी थी जहाँ पे बहुत कम लोग थे, पीसफुल रास्ता था, राइट? द ऑफिसर, दैट इज दिस पुलिस ऑफिसर with his stalwart form. Stalwart means that faithful form and slight swagger, that is to walk in a very proud and confident way on the road. He made a fine picture of a guardian, that is a protector of peace. तो ये जो पुलिस ऑफिसर थे वो इस तरह से रास्ते पे चल रहे थे, हाथ में छड़ी घुमाते हुए, अलग अलग तरीके से छड़ी घुमा रहे थे, बस अपने में ही मग्न थे. बट एट द सेम टाइम his eyes were very clearly watching
doors of the shops and the street where there were very few people, and he was doing his job of protecting, that is, his job was as a guardian of peace. And the vicinity matlab, see again is given over here, nearby area. The vicinity was one that kept early hours. और ये जगह ऐसी थी जहाँ पे लाइक ऑफिस आवर्स वी कैन से, शाम होते होते सब कुछ एकदम शांत हो जाता, लोग अपने घर चले जाते अपनी दुकानें या ऑफिस बंद करके. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर, बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज. अब ये जगह ऐसी थी कि आसपास में और उस रास्ते पे थोड़ी बहुत शॉप्स खुली थी, जैसे मेडिकल स्टोर हो या लंच काउंटर हो या सिगार स्टोर हो, वहाँ पे थोड़ी लाइट्स जल रही थी. बाकी ये रास्ता ऐसा था जहाँ पे काफ़ी ये बिजनेस एरिया था, तो लोग अपने अपने घर चले गए थे बंद करके अपनी शॉप या ऑफिस. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अचानक एक जगह पे आके पुलिसमैन की वॉक स्लो डाउन हो गई. He started walking slowly. Now what did he see that made him walk slow over here? In the doorway of a darkened hardware store. एक ऐसी जगह पे वो आए जहाँ पे एक हार्डवेयर का स्टोर था जो बंद था, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था. A man was leaning मतलब ऐसे आराम से वो लीन होते हुए ऐसे खड़ा था, with an unlighted cigar in his mouth, और उसके मुंह में सिगार थी लेकिन अब तक जली हुई नहीं थी वो. As a policeman walked up to him, the man spoke up quickly. अब जैसे ही पुलिसमैन उसके पास गया तो उस आदमी ने क्या कहा? It's all right officer, that is don't worry, मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ. I'm waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. 20 साल पहले हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था. And we had promised each other that we would meet after 20 years over here. Right? तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ. Sounds a little funny to you, doesn't it? अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ये फनी सुनाई दे रहा होगा कि 20 साल पहले जो प्रॉमिस दिया था हमने दो फ्रेंड ने, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में 20 साल के बाद यहाँ पे रात के अंधेरे में खड़ा हूँ. तो इट्स अ बिट फनी, राइट? वेल, चलो, अगर आप कहो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको सुनाऊँ कि क्या हुआ था 20 साल पहले. वेल, I'll explain if you would like to make certain. और आपको अगर कोई डाउट जा रहा है मुझ पे कि मैं क्यों खड़ा हूँ ऐसे अंधेरे रास्ते पे एक कोने में एक दुकान के पास, तो चलो ये सर्टेनिटी के लिए मैं आपको बता दूँ क्या हुआ था. It's all straight मतलब it's very clear. About that long ago मतलब 20 साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी. There used to be a restaurant where today this store, हार्डवेयर का स्टोर है, Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago, said the policeman. और पुलिसमैन ने कहा कि यहाँ पे राइट 5 साल पहले एक दुकान, ये हार्डवेयर की दुकान हुई है. It was torn down then, और वो रेस्टोरेंट बंद हो गई थी. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. अब ये आदमी जिसके मुंह में अब तक अनलाइटेड सिगार था, दैट अननोन मैन, वो उसने अपनी मैस्टिक जलाई, सिगार जलाई उससे, और सिगार की लाइट में उस आदमी का एक हल्का सा स्लाइट फेस दिखाई दिया उस पुलिसमैन को. द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉ, मतलब किसी का ऐसे स्ट्रेट एंड देन अ बिट ऑफ यहाँ से ऐसे, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर जॉ फेस. तो फेस थोड़ा स्क्वायर जॉ था, विथ कीन आईज, ईगर आईज, एंड अ लाइट वाइट स्कार ऑन हिज राइट आईब्रो, और उसके राइट आईब्रो पे एक स्कार था. स्कार मतलब निशान. हिज स्कार्फ पिन वॉज लार्ज डायमंड ऑडली सेट, और गले में कई बार ऐसे स्कार्फ लगाते हैं या टाई पहनते हैं तो स्कार्फ पिन भी होता है ना, गले में कुछ ऐसे डाल दो, नॉट लगा दो और उसके ऊपर एक पिन लगा दो फॉर शो ऑफ, राइट? जैसे कहीं पे पार्टीज में जाओ तो कई लोग ऐसे फ्रॉक्स पहनते हैं, पार्टी फ्रॉक्स एंड ऑल, तो एक यहाँ पे ब्रॉश रहता है.
साड़ी जब कोई पहनता है तो उस साड़ी के ऊपर ऐसे डालने के बाद यहाँ पे एक डेकोरेटिव पीस लगाया जाता है टू होल्ड द साड़ी एज वेल एज इट्स अ पीस ऑफ डेकोरेशन। तो यह आदमी ने भी स्कार्फ लगाया था गले में और उसको टाई करके वहाँ पे एक पिन लगाई थी। नाउ दैट इज कॉल्ड स्कार्फ पिन। टाई के ऊपर लगती है तो टाई पिन कहते हैं। सो ये स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड वन ऑडली सेट। अब ये तो बहुत महंगा स्कार्फ पिन था। उस सिगार की लाइट में, सिगार जब जलाया उस आदमी ने तो उसकी लाइट में ये सब कुछ पुलिसमैन ने देखा। 20 years ago tonight, अब उस आदमी ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की कि 20 साल पहले रात को मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पे डिनर लिया था। आई डाइन्ड हियर एट बिग जूस ब्रेडी रेस्टोरेंट विद जिमी वेल्स। तो इस आदमी के फ्रेंड का नाम क्या था? जिमी वेल्स। माई बेस्ट चम मीन्स माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्टी एंड द फाइनेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। चैप मतलब मैन। और मेरा फ्रेंड जिमी वेल्स तो बेस्ट था, राइट? वर्ल्ड में दी बेस्ट मैन। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए न्यूयॉर्क में। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, दो भाइयों की तरह बड़े हुए हम। आई वॉज 18, जिमी वॉज 20 और मेरा फ्रेंड मुझसे 2 साल बड़ा। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग I had decided to go to West to make my fortune. अब जैसे कि आज रात को डिनर लिया and tomorrow morning as if somebody has to move out, तो वैसे वो सिगार वाला आदमी बता रहा है कि हमने डिनर लिया और दूसरे दिन सुबह मैं मीन्स आई वॉज टू स्टार्ट फॉर माई जर्नी टू द वेस्ट। और क्यों वेस्ट जा रहा था मैं? टू ट्राई माई लक, टू ट्राई माई फॉर्च्यून, मतलब पैसे कमाने। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन मेरा फ्रेंड, उसे भी मैं ले जाना चाहता था मेरे साथ, मैं बेस्टी को, बट कोई उसे न्यूयॉर्क के बाहर नहीं ले जा सकता था। वाई? बिकॉज ही थॉट, माई फ्रेंड थॉट, जिमी वेल्स थॉट कि न्यूयॉर्क एक ही जगह है पूरे प्लैनेट पे। ही थॉट इट वॉज दी ओनली प्लेस ऑन अर्थ। वेल, वी अग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly after 20 years from that day and time. मतलब 20 साल पहले हमने उस रात डिनर लेने के बाद जब अलग हो रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे, तो हमने प्रॉमिस दिया था कि हम दोनों 20 साल के बाद यहाँ पे मिलेंगे, सेम डेट सेम टाइम, नो मैटर वॉट आर कंडीशन माइट बी। कोई भी कंडीशन में हम हो, अच्छी बुरी, बट हम मिलेंगे। कितना भी लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़े फिर भी हम मिलेंगे एक दूसरे को। वी फिगर्ड दैट, मतलब हमने ये फिक्स कर लिया था दैट इन 20 years ईच ऑफ अस ऑट टू हैव अ डेस्टिनी वर्कड आउट। और हमने ये भी बात की थी, कैलकुलेशन कर लिया था कि 20 साल इनफ हो जाएंगे, हम दोनों अपनी लाइफ बना लेंगे अपनी तरीके से। वी विल मेक अ फॉर्चून वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी। और जो भी हमारा नसीब लेके आएगा हमारे लाइफ में, 20 साल के बाद हम यहाँ पे मिलेंगे अपनी उस नई लाइफ के साथ। सो इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन तो कहने लगा, वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीज। ओह गॉड, 20 साल के बाद काफ़ी लंबा टाइम है, राइट? बहुत लंबा टाइम के बाद आप मिल रहे हो। दो इट सीम्स टू मी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि 20 साल काफ़ी लंबे हुए। हैवेंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट? अब जिमी वेल्स तो उसका फ्रेंड था, तो अब ये पुलिसमैन उस सिगार वाला आदमी को पूछ रहे हैं कि क्या जिमी वेल्स के साथ कभी आपने इन 20 सालों में बात नहीं की? अब ये बेचारा सिगार वाला आदमी कह रहा है, वेल येस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, मतलब कम्युनिकेशन रही हमारी थोड़े टाइम के लिए, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, बट आफ्टर अ ईयर और 2 वी लॉस्ट द ट्रैक ऑफ ईच अदर, राइट? Like I have one very close friend staying in US and one more staying in England. तो जो US में रहती है उसके साथ like initially some maybe many years back, 30 maybe, yeah, 30 years back, maybe a bit more than that, 35 years back, she shifted to US and तो थोड़े साल तक आई वुड से थोड़े साल भी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। फ़ोन कॉल्स होते हैं हमारे बीच में, वी यूज्ड टू राइट लॉन्ग लेटर्स टू ईच अदर, क्योंकि फ़ोन इतने लंबे करने पे तो लंबा बिल आ जाता है लाइक, तो
I used to write letters to her. She used to send, big page भर भर के letters लिखते थे एक दूसरे को. But then slowly, so हाँ, when she used to come to Bombay, she used to give me a call. तब तक मैं अहमदाबाद आ चुकी थी. तो a few years back, तो I used to move to Bombay at least for, I would make it a point to move at least for one day, one night and stay with her over there, enjoy with her. It so happened now in this last 5-6 years कि कहीं पे बात नहीं हो रही हम दोनों की. Somewhere we both are busy in our own lives so much engrossed that आज इस स्टोरी के थ्रू शायद मैं बता रही हूँ, इस लेक्चर के थ्रू अचानक से उसकी बात याद आ गई. एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग विथ माई डियर चिल्ड्रन वेर आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई शेयर माई experiences with you, my emotions with you. And yes, I know that you people are too small, but then I feel that to share with my dear children as friends, पता नहीं तुम्हारी और से emotions, but I feel very good, I feel relaxed, I feel happy when I talk to you, right? When I share with you many things of my life. तो हुआ ये कि today when through this lecture, when I'm giving you this lecture, I have already decided that today is the day when I'm going to give her a call. शायद वो भी कहीं पे फंस चुकी है अपने काम में, that she is not able to communicate with me. तो yes, today is the day when I'm going to call. लंबी बातें करेंगे after long time. So thank you for this GSEB, this chapter where once again I'm going to communicate after long years, 5-7 years के बाद बात होगी आज मेरी अपने बेस्टी के साथ. और सो एज वी मूव अहेड, तो उस आदमी ने ये कहा, जो सिगार वाला आदमी था, कि हाँ 2-3 साल बात की मैंने मेरे फ्रेंड जिमी वेल्स के साथ, फिर कहीं पे ट्रैक लूज हो गया, मतलब वी जस्ट लॉस द ट्रैक. हम धीरे अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि हम एक दूसरे के साथ, याद तो थे फ्रेंड्स, याद हमेशा सब रहते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू बी इन टच विथ ईच अदर. यू सी, द वेस्ट इज़ अ प्रिटी बिग प्रपोजिशन. मतलब मैं तो वेस्ट में आ गया, दैट इज आई लेफ्ट न्यूयॉर्क, आई मूव टू अदर प्लेस टू मेक माई फ्यूचर, टू अर्न मोर मनी. और तुम्हें पता है वेस्ट में तो क्या बड़े प्रपोजिशन है, मतलब इतनी सारे हमारे पास अच्छा फ्यूचर है वहाँ पे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वेस्ट में. एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली. और मैं बस यहाँ से वहाँ काम करता गया, बहुत पैसे कमाता रहा. बट आई नो जिमी विल मीट मी योर इफ इज़ अलाइव. लेकिन मेरे फ्रेंड के बारे में मुझे पता है कि अगर जिमी वेल्स जिंदा है तो वो आज कुछ भी हो जाएगा. इज गोइंग टू मीट मी टुडे, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप, राइट. देखो, प्रपोजिशन मतलब सजेशन, स्टॉन्च मतलब फेथफुल. मेरा फ्रेंड बहुत ही फेथफुल है और मुझे पता है कि वो आएगा ही यहाँ पे, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में होगा, आज यहाँ पे वो पहुँच जाएगा. ही विल नेवर फॉरगेट दैट प्रॉमिस मेड 20 years ago. I came 1,000 miles away from to stand in this door tonight and it's worth if my old partner turns up. और मैं हज़ारों माइल उड़ के यहाँ पे आया हूँ आज रात को, यहाँ पे इस अंधेरी रात में खड़े रहने इस शॉप के बाहर. और अगर मेरा फ्रेंड आ जाए, 10 मिनट लेट भी आए, लेकिन अगर वो आ जाए आज, तो मेरा यहाँ पे इस अंधेरे रास्ते पे, इस अंधेरे कॉर्नर में खड़ा रहना इक्वल टू हो जाएगा. It will be good, it will be worth. The waiting man pulled out a handsome watch. उस सिगार वाला आदमी ने मस्त एकदम वॉच की तरफ देखा कि कितने बजे, हम मिलने वाले थे रात को 10 बजे, देखते हैं क्या टाइम हुआ. The lids of it set with small diamond. अभी भी हल्की सी लाइट में उस पुलिस मैन ने क्या देख लिया कि उस वॉच पे भी डायमंड्स थे, स्कार्फ पिन भी डायमंड वाली. वाह, ये तो आदमी बहुत ही कुछ ज़्यादा पैसे वाला है. 3 minutes to 10. That man said to the policeman कि 10 बजने में अभी 3 मिनट बाकी है. It was exactly 10 o'clock when we parted away from here at the restaurant door. और 20 साल पहले हम exactly 10 बजे यहाँ से अलग हुए थे. इस यहाँ पे जो रेस्टोरेंट थी पहले, उसके डोर से हम अलग हुए, अलग अलग अपने अपने घर गए.
Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. अब पुलिसमैन का ध्यान था उसकी वॉच पे, डायमंड वाली वॉच, डायमंड वाली स्कार्फ पिन. तो उसने कहा वाह, वेस्ट गए थे तुम यहाँ से इस जगह को छोड़ के अपना नसीब आजमाने. काफ़ी अच्छा नसीब तुमने कमाया है, मतलब काफ़ी कुछ पैसे कमाए हैं वेस्ट में जाके. यू बेट. आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल. तो सिगार वाला आदमी क्या कह रहा है पुलिसमैन को? ओह, आई होप कि मेरे फ्रेंड जिमी वेल्स ने एटलीस्ट, मैं अगर बहुत कुछ कमा लिया है मैंने, तो उसका आधा तो एटलीस्ट जिमी ने अपनी लाइफ में कमा ही लिया है. आई होप सो. ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर. प्लॉडर मतलब भाई मेरा फ्रेंड तो काफ़ी स्लो था, यू नो. उसे इंटरेस्ट नहीं था कि भाई खूब पैसे कमाए, ये करे, वहाँ दौड़े, यू नो. ही वॉज अ वेरी क्वाइट मैन, ऑनेस्ट मैन, बट येस ही वॉज वेरी गुड फेलो एट द सेम टाइम. I had to compete with some of the sharpest wits to get my pile. और मुझे अपना नसीब आजमाना था, राइट. मुझे अपना नसीब चमकाना था. तो मैं वेस्ट गया और वहाँ पे शार्पेस्ट विट्स का सामना करना पड़ा. मतलब बहुत ही क्विक अंडरस्टैंडिंग के साथ काफ़ी कुछ मुझे फेस करना पड़ा, तब जाके इतने पैसे कमाया हूँ. अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क. टू गेट इन अ ग्रूव मतलब एक सेम जॉब में हम फंस जाते हैं. अगर बहुत पैसे कमाने हैं तो एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो जाएगी वेस्ट में जाके. मेरी लाइफस्टाइल वही बन गई थी. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. और मतलब अगर वेस्ट में जाते हो पैसे कमाने तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो फंसोगे ही. द पुलिसमैन ट्रोल्ड हिज क्लब. ट्रोल्ड मतलब अपनी छड़ी को घुमाना. एंड टुक अ स्टेप और टू. फिर थोड़े से आगे गए एक स्टेप. आई विल बी ऑन माई वे. मतलब अब मुझे आगे बढ़ना होगा. आई एम ऑन माई नाइट वॉक. नाइट वॉक मतलब ऐसे वॉक पे निकलना नहीं. टू चेक दैट एवरीथिंग इज गुड. ही वॉज अ गार्डियन, राइट. दिस पुलिसमैन इज शोन एज अ गार्डियन. होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट. गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प. अब यह आदमी ने कहा कि आई होप, पुलिसमैन ने कहा आई होप कि तुम्हारे फ्रेंड टाइम पे आ जाए तुम्हें मिलने, राइट. And I hope that he also gives equal respect to time and comes sharp at 10 o'clock over here. I should say not. I will give him half an hour at least. अब जब पुलिसमैन ने लाइक यहाँ पे गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प मतलब कि क्या जैसे ही 10 बज जाएंगे तो तुम निकल जाओगे यहाँ से, तो उस आदमी ने कहा ना ना, एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो दे ही सकता हूँ मेरे फ्रेंड के लिए, तो मैं 10:30 तक वेट करूँगा. और अगर मेरा फ्रेंड जिंदा है वो यहाँ पे टाइम पे आ ही जाएगा. सो लॉन्ग ऑफिसर मतलब बाय बाय. तो पुलिस मैंने कहा गुड नाइट सर. ही वेंट ऑन हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. ट्राइंग डोर मतलब जैसे हर एक ऐसे हम कहते हैं ना कि ठक ठक करते हुए, तो दैट इज़ हाउ. नाउ द पुलिसमैन वेंट अहेड चेकिंग ईच डोर ऑफ द स्टोर्स एंड ऑल ओवर दे ऑन द क्वाइट रोड. There was now a fine cold drizzle falling. अब हल्की सी बारिश भी चालू हो गई थी. ठंड तो थी ही बहुत. And the wind had risen from its uncertain puffs in a steady blow. Uncertain puff मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हवा चलना, लेकिन अब steady blow हो गया. मतलब अब हवा जो चल रही थी, ठंड हवा, वो कंटिन्यूटी में आ गई. steady, थोड़ी देर आना, फिर नहीं, फिर थोड़ी हवा, फिर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पहले हुआ. अब एकदम कंटिन्यूटी में हवा ब्लो होने लगी. और ये तो बहुत ठंड हवा थी, प्लस बारिश हो रही थी. द फ्यू पेडेस्ट्रियन मतलब रास्ते पे, फुटपाथ पे चलने वाले लोग. द फ्यू पेडेस्ट्रियन इन द नेबरहुड हरिड डिसमेली मतलब इन मिजरेबल कंडीशन. जैसे बहुत ठंड हो और ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत लोग नेबरहुड के वो एकदम ही मिजरेबली फटाफट घर पे जा रहे थे चल के. एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर स्टर्न अप. कोट कॉलर स्टर्न अप मतलब अगर ऐसे फोल्ड हैं तो उसको सीधा कर देना ऐसे टाइट. एंड पॉकेटेड हैंड्स मतलब कॉलर ऊपर कर दिया कोट का और हाथ को जेब में डाल दिया. एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट विद अ फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड. और वो जो आदमी जो अपने फ्रेंड को मिलने 20 साल के बाद अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने हज़ारों माइल दूर से आया था, वो अभी भी अपनी सिगार जलाए हुए वहाँ पे खड़ा हुआ था, वेटिंग फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड जिमी वेल्स. अबाउट 20 minutes ही वेटेड. 20 मिनट तो वेट कर लिया.
Then came a tall man in a long overcoat with a collar turned up to his ears. अचानक उसने देखा कि एक लंबा आदमी आया, लंबा सा कोट, यहाँ तक का ऐसे कॉलर ऊपर किया हुआ क्योंकि ठंड बहुत थी. एंड हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. और वो रास्ता क्रॉस करते हुए सामने से आ रहा था. और डायरेक्टली कहाँ पे आया वो? उस जो आदमी ने सिगार जला के जो एक कॉर्नर में खड़ा था ना अंधेरे में, वो उसके पास आ गया. इज दैट यू बॉब? इसका मतलब जो सिगार जला के खड़ा हुआ था उसका नाम क्या था? बॉब, जो हज़ारों माइल क्रॉस करके आया था. और जो जिमी वेल्स था वो बेस्ट फ्रेंड था, तो आ गया जिमी वेल्स यहाँ पे. अब जिमी वेल्स ने पूछा, इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली. उस आदमी ने एकदम से खुशी में कहा, ओह इज दैट यू जिमी वेल्स? ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल. अब जो अभी अभी जो आया था उसने कहा, थैंक गॉड, ग्रास्पिंग बोथ द अदर हैंड्स विथ हिज ओन. राइट? इज बॉब श्योर एज फेट? उसने कहा, येस यू आर बॉब माई बेस्टी. I was certain that I would find you here if you were still in existence. अब जिमी वेल्स ने भी यही कहा कि अगर मुझे पता था कि अगर मेरा फ्रेंड बॉब जिंदा होता तो आज आता ही यहाँ पे, और तुम जिंदा हैं तो तुम आए यहाँ पे. वेल वेल वेल, 20 years is a long time. The old restaurant's gone. और उस जिमी वेल्स जो अभी आया था उसने कहा कि वो 20 साल काफ़ी लंबे हैं. यहाँ पे जो रेस्टोरेंट थी जहाँ पे हमने 20 साल पहले डिनर लिया था वो तो बंद हो गई, मतलब तोड़ फोड़ कर दी उसकी, और उसकी जगह पे हार्डवेयर स्टोर आ गया. आई विश बॉब इट हैड लास्टेड. और जिमी वेल्स ने कहा कि बॉब अगर वो रेस्टोरेंट अभी भी होती तो आज फिर हम डिनर लेते यहीं पे. वी कुड हैव डिनर ओवर हियर. हाउ हैज वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा नहीं, ओल्ड मैन मतलब जस्ट ऐसे ही, कोई भी ऐसे नाम से कई बार हम बुला लेते हैं अपने फ्रेंड को. तो जिमी वेल्स ने कहा कि बॉब कैसी रही तुम्हारी ये 20 साल की जर्नी वेस्ट में? It has given me everything I asked for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. अब वो सिगार वाला आदमी जिसका नाम क्या था? बॉब. उसने कहा, हाँ मैं वेस्ट में गया, 20 साल में खूब कमाया, जो मांगा मिला मुझे, जो मांगा वो कमा लिया, खरीद लिया. लेकिन तुम काफ़ी बदल चुके हो. तुम तो इस 20 साल में बहुत लंबे हो गए. और क्योंकि यूजुअली 20 साल के बाद, 20 साल की एज के बाद ज़्यादा हाइट बढ़ती नहीं. और जब जिमी वेल्स और बॉब अलग हुए तब जिमी था 20 साल का और बॉब था 18. और जैसे ही बॉब ने ये क्वेश्चन रेज किया कि ओ जिमी तुम तो काफ़ी लंबे हो गए इतने सालों में, तो जिमी को कुछ तो बोलना ही था. उसने कहा, हाँ मेरी हाइट एक्चुअली मेरे 20 साल होने के बाद बढ़ी, तो तुम्हारे जाने के बाद मेरी हाइट थोड़ी बढ़ी. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी? मॉडरेटली, मतलब ओके ओके. आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट. तो मैं इस सिटी के एक डिपार्टमेंट स्टोर में अच्छी एक पोजीशन पे हूँ. कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू द प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग वॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. तो चलो लॉन्ग टॉक भी करेंगे, लॉन्ग वॉक भी करेंगे. और जिमी ने बॉब को ये कहा कि चलो चलते चलते बात करते हैं तुम्हारे लाइफ की, मेरे लाइफ की, इन 20 सालों की. द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, हाथ में ऐसे हाथ पकड़े हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे फ्रेंड. वन हिज इगोइज्म एंड लार्ज बाय सक्सेस. एक के मुंह पे और वॉक में क्या दिखाई दे रहा था? अभिमान. राइट? नॉट इन अ गुड वे बट यू नो द शो ऑफ फॉर्म, ईगो. क्योंकि बहुत पैसे कमाए थे बॉब ने, सक्सेस मिला था उसके हिसाब से. ही वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर. और उसने तो अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी अपने फ्रेंड को बताना. द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट. और जिमी वेल्स जो अभी अभी आया था वो तो अपने कोट में लिपटा हुआ था. He was listening with interest. वो अपने दोस्त की स्टोरी सुन रहा था 20 साल वाली. At the corner stood a drug store, मतलब मेडिकल स्टोर था एक कॉर्नर में. Brilliant with electric lights, बहुत सारी लाइट थी वहाँ पे. When they came into the glare, जैसे ही उस स्टोर के नज़दीक आए और काफ़ी लाइट थी, each of them turned simultaneously to look at each other's face. दोनों एक साथ मुड़े एक दूसरे का मुंह देखने. देखो चल रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के. जैसे ही लाइट वाला एक स्टोर आया दोनों मुड़ गए, ऐसे थे ऐसे हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे. द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म. और बॉब जो वेस्ट से आया था बहुत पैसे कमा के, उसने जैसे ही देखा इस आदमी का मुंह, उसने हाथ छुड़वा लिया, एकदम से स्टॉप हो गया. यू आर नॉट जिमी वेल्स. क्विकली ही सेड, ही स्नैप्ड. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug.
राइट, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक पिक अभी, कि 20 साल लंबे हैं, ठीक है, लेकिन इन 20 सालों में किसी की हाइट बढ़ती है, थोड़े बहुत स्लाइट लुक्स बदलते हैं। अब 20 साल के बाद जब हम मिलेंगे अचानक से, शायद हम रिकग्नाइज ना करें एक दूसरे को। आई विल रिकग्नाइज माई चाइल्ड, I don't know about you, right? But I know my loving children will recognize me after 1 year, 2 years, 3 years, 10 years, 20 years, right? When we meet, अचानक से कहीं पे मिल गए तो कहोगे ए कामिनी मैम, मैं कहूँगी ओ वाओ माय, अब तो नाम तो मैं लूँगी नहीं यहाँ पे। अगर एक नाम नहीं लिया तो उस मेरे बेबी को बुरा लग जाएगा। सो all my dear children, I know we both will remember each other for long, long, long years. तो यहाँ पे यही बता रहा है वो सिगार वाला आदमी बॉब जिमी को कि ठीक है 20 years लॉन्ग टाइम है, लेकिन इतने भी लंबे नहीं है कि किसी का गोल नाक पॉइंटेड हो जाए या पॉइंटेड नाक गोल हो जाए, राइट? सो इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड दैट अनदर मैन इन दैट लॉन्ग कोट हु हैड कम। मतलब जिमी वेल्स ने कहा कि हाँ 20 साल में किसी का नाक तो नहीं बदलता, ठीक है बॉब, लेकिन एक अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। यू आर अंडर माई अरेस्ट सिंस लास्ट 10 minutes सिल्की बॉब। सिल्की बॉब एक नाम फेमस हो चुका था, जो पुलिस जिसके पीछे पड़ी थी, और ये लंबे कोट वाले ने कहा बॉब को कि सिल्की बॉब, इस नाम से तुम बहुत फेमस हुए हो, अच्छे काम के लिए नहीं बुरे काम में, और तुम लास्ट 10 मिनट से मेरे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हो, लेकिन तुम अंडर अरेस्ट हो। गोइंग क्वाइटली आर यू, छिप के भागने वाले थे। This sensible. But before we go to the police station, here's a note I was asked to hand you. चलो पुलिस स्टेशन प्रिजन में डालने के पहले मुझे पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि भाई ये नोट मैं तुम्हें दे दूँ, राइट? तो ले लो ये नोट और रीड करो। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, चलो यहीं पे रीड कर लो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स। पेट्रोलमैन मतलब रात को जो निकलते ना, जागते रहो हाथ में डंडा लेके, टू हम आराम से सोते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी आर एट पीस एट नाइट व्हेन वी आर स्लीपिंग, वी आर नॉट इन फियर बिकॉज वी नो देयर इज पुलिस आउटसाइड हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस, हु इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, राइट? तो ऐसे ये पेट्रोलमैन जिमी वेल्स था। द मैन फ्रॉम द वेस्ट मतलब बॉब ने अनफोल्ड मतलब लेटर को, उस पेपर को खोला। ही स्टार्टेड रीडिंग। हिज हैंड वॉज स्टेडी मतलब शिवर नहीं हो रहा था, इट वॉज स्टेडी when he began to read, but जैसे ऐसे रीड करता गया तो हाथ शिवर हो रहा था। A little at it by time he had finished, his hand started trembling. The note was very short. Let's see what the note was. Bob, ये उसके बेस्ट फ्रेंड जिमी ने लिखा था। Bob, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, उस हार्डवेयर शॉप के नीचे, I saw the face of the man who was wanted in Chicago. अचानक से देखा तुम्हारा फेस उस सिगार की लाइट में जब तुमने सिगार जलाई कि भाई ये तो वही आदमी है हु इज़ वांटेड। वांटेड मतलब जिसके बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगते रास्ते पे, दिस मैन इज़ वांटेड, हूएवर विल गेट हिम और हर विल बी गिवन 1 लाख रुपीज़ या 10,000 और 20,000, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं और फुटपाथ के पास वॉल पे, या आजकल ये नहीं होता तो मास मीडिया में वो फ़ोटो दिखाई जाती है। तो ये पुलिसमैन ने मतलब उस लेटर में लिखा हुआ था कि यू आर द मैन हु इज़ वांटेड। अचानक से मैंने देखा कि तुम तो वही हो। समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ। अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड, तो मैं तो ऑलरेडी उसी टाइम तुम्हें जेल में डाल सकता था, बट आई कुडंट डू इट, सो आई वेंट अराउंड। तो मैं गया, आई गॉट अ प्लेन क्लोज मैन टू डू द जॉब। और मेरे ही पुलिस को, एक पुलिसमैन को मैंने कहा कि प्लेन क्लोज में जाओ जिमी वेल्स बन के और तुम्हें पकड़ के आ जाए। जिमी मतलब ये लेटर लिखा गया था बाय जिमी। सो लेट्स सी अहेड ऑल योर, आगे भी लिखे हुए हैं मैंने मीनिंग्स, ये भी यहाँ पे मीनिंग्स हैं। रोमन नोज, शार्प वन, पग नोज, राउंड। नाउ ये एक्टिविटी है, तो जिनको है, चलो ये तो ग्रामर है तो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे, कई बार सफिक्स भी होते हैं, मतलब कि प्रीफिक्स। देखो यहाँ पे कॉम्पिटेंट जैसे डायरेक्ट, तो आगे इन लगा दिया, उसका ऑपोजिट बन गया इनडायरेक्ट।
प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, अलग अलग प्रीफिक्स होते हैं. लीगल, इलीगल, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल. तो वैसे ये सब तुम लिखोगे नेचुरली. एक दो मैं बता दूंगी. कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, पार्शियल, इम्पार्शियल, बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड, अनकंफर्टेबल, इमेच्योर, इलॉजिकल. राइट. तो ऐसे सब लिखने हैं तुम्हें. अब 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable या more syllable, more than 1 syllable वाले हो सकते हैं. तो कम. इसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती. स्लिप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे. स्लो, इप, क, म, क्र, अप, डे, क, व, ओ. होगा ही नहीं. लेकिन तो ये सिंगल सिलेबल हुए. डबल वाले परफेक्ट एक वर्ड है तो हम उसको अलग कर सकते हैं. परफेक्ट, मॉर्निंग, राइट, या मॉर्निंग, एक्सक्लेम. अब एक से ज़्यादा वाले जैसे तुम कह सकते हो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. टूगेदर का हम बनाएंगे टूगेदर. इन्वेस्टिगेट. राइट. अब इसमें कौन से हैं? तो ब्लेस 1 सिलेबल वाले. ट्रैक, स्क्रू, स्लो, ड्रीम. वैसे फार्मर 2 वाले हैं. बिगैन 2 वाले हैं. राइट. अब कॉलम ए और बी को हम आमने सामने देखेंगे. ये ए है और ये बी है. दोनों में 1 2 1 2 दिया है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है. तो रीड कर लेना है बाद में. विल डू 1 और 2, कोई भी एक ले लो. एक कमिश्नर, चलो हाई कमिश्नर 4th, उसके साथ जाएगा 7th. तो हाई कमिश्नर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री. फिर डिटेक्टिव 6 के साथ जाएगा 4. अ पुलिस ऑफिसर हु फाइंड्स आउट इंफॉर्मेशन टू कैच अ क्रिमिनल. तो ये लर्न करना है तुम्हें फॉर योर एग्जाम. फिर ये यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ है. तो हम कहेंगे इम्प्रेसिव. तो कई बार दोनों के लिए ये वर्ड एडजेक्टिव्स जाएंगे उनको डिस्क्राइब करते हुए. कई बार सिर्फ एक को, जैसे इम्प्रेसिव तो दोनों इम्प्रेसिव थे. पेशेंट तो जिमी वेल्स. एक्टिव तो बॉब. इगोइस्टिक अभिमान, बॉब. ऑनेस्ट जिमी वेल्स. हम्बल जिमी वेल्स. एरोगेंट बॉब. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच यू हैव टू डिवाइड. और कई ऐसे होंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो सकते हैं. चलो थोड़े 1-2 MCQ कर लेते हैं. द स्ट्रीट्स वर डी पीपल. डी पीपल मतलब बहुत कम लोग थे रास्ते पे. वाई? बिकॉज इट वॉज विंडी एंड रेनिंग. Jimmy and Bob decided to meet after 20 years because they would have made their destiny. यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है. Jimmy sent a plainclothes policeman to arrest Bob because he was sensitive. Right? So with this we stop over here and we meet very soon. So that is with writing skill and essays. This time together it will be. So thank you very much. Take care.